بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر آیت نمبر جو ہے 158 میں صبر کی بات چل رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کی ایک زندہ مثال یہاں پر بیان کی ہے، اور وہ ہے یعنی کہ صفا اور مروہ کا جب بھی نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہ ذہن میں بالکل ان کا ہی تصور آ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ کون تھی یہ حضرت جو ہے وہ ہاجرہ؟ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ سوچئے کتنا صبر، ایک بڑھاپے کی اولاد اور ایک اسماعیل علیہ السلام، اس کے بعد جو ہے یعنی کہ ایک بڑھاپے کا سہارا کہنا چاہیے، پھر انہوں نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اپنے گھر کو ویران کیا اور اللہ کے گھر کو آباد کیا۔ خود کو سوچئے ذرا، میں نے دین کے لیے اپنی کیا گھر کی قربانیاں دی آج تک میں نے کوئی قربانی اللہ کے دین کے لیے؟ کیا میں نے اپنے گھر کا کام تھوڑا سا یہاں وہاں اسکپ کیا، تھوڑا سا ایڈجسٹ کیا؟ ایسے ہی نہیں دیکھے کہ اللہ ذکر تا قیامت باقی رکھے گا، کچھ نہ کچھ مجھے اور آپ کو بھی قربانیاں دینی پڑیں گی، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اللہ کے راستے میں۔ اللہ اکبر۔ سوچیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پوری فیملی کے صبر کو یہاں پر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ سوچیے، اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی دین کا کام لیتے ہیں نا، تو ان کے نسلوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اثر باقی رکھتا ہے۔ میں اور آپ بہت اس چیز کے حریص ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس چیز کی میں اور آپ بہت زیادہ حریص ہیں کہ ہاں مجھے جننا چاہیے، یا میرے بچے کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے چن لے یا مجھے چن لے۔ کرنا کچھ نہیں چاہتے، ہم کو سب فری آف کاسٹ چاہیے، ہم کوئی بھی اللہ کی راہ میں جو ہے کہنا چاہیے کہ قربانیاں نہیں دینا چاہتے، اپنی نیند کو قربان نہیں کرنا چاہتے، اپنے وقت کو قربان نہیں کرنا چاہتے، کچھ بھی نہیں۔ سوچیے، اور یہاں پر دیکھیں کہ آج تو اتنے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کا گھر جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو ہے اپنا گھر بنوایا، اور لیکن آج دیکھیں لوگ اللہ کا گھر بنا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کو تعمیر کرنے کے تو شوقین ہے لیکن اس کو آباد کرنے کے شوقین نہیں۔ یاد رکھیں کہ مسجدوں کو تعمیر کرنے سے زیادہ اس کو آباد کرنا ضروری ہے۔ کس طریقے سے آباد کیا جاتا ہے؟ اس میں اللہ کی عبادت کر کے، ٹھیک ہے۔ چلے، پھر اس کے بعد اگلی آیتوں پر انشاءاللہ ہم چلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شعور کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تو مجھے بھی دین کے کام کی توفیق عطا فرما، بہت دل سے اللہ سے دعا مانگ لے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو دیکھیں کہ ہم عورتیں ہیں، تو عورتوں کے ہی تعلق سے اگر بات کریں ہم، تو یاد رکھیں کہ آج عورتیں کہیں گی نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور میں بولتی ہوں کہ جس رب نے آپ کو 24 گھنٹہ دیا، کیا اس رب کے لیے 1 گھنٹہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے نا، بہت ہی ناانصافی کی بات۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، آپ جس چیز میں بھی برکت چاہتی ہیں نا، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ آپ وقت میں برکت چاہتی ہیں، اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ آپ صحت میں برکت چاہتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، ٹھیک ہے۔ چلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو کیا کریں؟ یہ صفا اور مروہ کون سی جگہ ہے؟ کہ جہاں حضرت حاجرہ کا دوڑنا اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تا قیامت ہر مرد، ہر عورت، ہر کسی کو ان کے قدموں پر چلنے کی جو ہے ایک رکن بنا دیا۔ حج اور عمرہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کا جب تک آپ اس کو سعی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ محسوس کریں ان چیزوں کو جب آپ وہاں پر جائیں۔ اللہ نے توفیق دی، میں گئی، ایک ایک قدم پر ایسے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ابھی تو خیر اتنا سہولتیں ہو گئی ہے کہ کوئی دقت نہیں ہوتی اتنی، لیکن اس وقت کو سوچئے کہ جب کچھ نہیں تھا، پہاڑی پہاڑی، کیسے وہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ کر اور اس طریقے سے دوڑ رہی تھی پیاس کی شدت میں، کہ اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند۔ یاد رکھیں، اصل چیز
آپ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ کچھ تو میں اور آپ بھی قدموں کے نشان چھوڑ جائیں. لیکن آج میرے اور آپ کے پیر کا چھاپ کوئی فریم کر کے کدھر لگانے والا نہیں ہے. مقام ابراہیم بن گیا. وہ بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کام لے لیا اپنے گھر کا. ان کے بچے اور ان کی بیوی کا بھی کیسے، یعنی کہ حج اور عمرے کے ارکان جو اس میں رکھ دیے. میرے اور آپ کے چھاپ تو کوئی نہیں رکھے گا پیر کا، ہاں، لیکن میں اور آپ جو آج کے ٹائم پر امت کو دے کر جائیں گے، دعا کرے اللہ تا قیامت اس کو برقرار رکھ، عافیت کے ساتھ برقرار رکھ، صحیح طریقے سے تیرے دین کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا، تاکہ میرے اور آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ انشاءاللہ بن جائے. حضرت کہتے ہیں یہ اس میں کوئی حج، جو بھی کوئی حج کرے یا عمرہ کرے اللہ کے گھر کا، ٹھیک ہے. اچھا، آپ حج تو الحمدللہ بھی نو کہ 5 دن کے ارکان ہوتے ہیں، سب کرنا ہوتا ہے. عمرہ کا لٹریٹ میننگ کیا ہوتا ہے؟ چلے آج ہم اس کا بھی خلاصہ کریں. اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کا طواف کرنا، اس کو عمرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عمرہ یعنی جب آپ اس کے حدود میں آ گئی ہیں، مکہ میں حرم کے حدود میں، تو آپ کے لیے جائز ہو گئی یہ چیز کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کریں اور اس کا مطلب دیدار کریں اور اس کا طواف کریں. یہی عمرہ کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ تم طواف کرو ان دونوں کا. ٹھیک ہے، طواف میں چکر لگاؤ. ٹھیک ہے، صحیح صحیح سے مراد یہ ہے کہ صحیح کرو ان دونوں کا. ان دونوں مطلب یہ صفا اور مروہ. ہم؟ اور جو کوئی بھی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا گیا واضح بیانات اور ہدایت اور اس کے بعد جو بیان کی گئی تمام انسانوں کے لیے کتاب میں، یہی لوگ ہیں کہ لعنت ہے ان پر اللہ کی اور لعنت ہے لعنت کرنے والوں کی. اللہ اکبر. سوچئے، بہت بڑی بات ہے یہ. مجھے تو پڑھتے ہوئے رونتے کھڑے ہو گئے. لیکن آپ سمجھ نہیں رہے نا، اس لیے آپ کول ہو کے بیٹھے ایک دم. سوچئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً کہتے ہیں کہ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر نہ بتائے تو بھی چلے گا. ٹھیک ہے، ایسا مطلب بدگمانی نہ ہو جائے کہ یہ بندہ اپنی بڑائی مار رہا ہے. بہت ساری چیزیں تھی ایسا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں، لیکن انہوں نے جیسے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ چیز نہیں بتانا، یہ چیز نہیں بتانا، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر بتایا کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں نہیں آ جاؤں کہ حق مجھ پر آ گیا ہے، حق مجھ کو پتا چل گیا ہے، قرآن میں یہ چیز ہے. جیسے پیچھے ابھی میں نے اگزامپل دی تھی، واپس آپ کو کہہ دوں کہ کوئی حق بات ہے اور میں آپ کی ناراضگی کے ڈر سے اس کو میں نہ بتاؤں تو میں بھی اس لعنت کی کیٹیگری میں آ جاؤں. تو میں تو نہیں چاہتی اللہ کی لعنت میں آنا. اللہ اکبر. سوچیں نا، دل میں دھکا سا لگتا ہے نا ایک دم. اتنا بول رہے مجھے پتا ہے میری بندیوں تم سب ڈر گئی ہو، چلو میں نے ایک ایکسیپشن تمہیں دیا ہے، ایک چانس تمہیں دیا ہے. کون لوگ ہیں جو اس لعنت سے بچیں گے؟ یہ سوائے وہ لوگ، یعنی وہ لوگ اللہ کی لعنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے نمبر 1 توبہ کر لی، نمبر 2 اصلاح کر لی، اور پھر صحیح چیز انہوں نے بتا دیا لوگوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتوبوا علیہم. ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، ان کے طرف متوجہ ہوتا ہے. دیکھیے بڑے مشکل کام ہے. آپ نے غلط دین پھیلایا، غلط چیزیں لوگوں کو بتائی، اب آپ جائیں اللہ کے حضور میں توبہ کریں، اللہ مجھے یہ چیز نہیں پتہ تھی اور میں جو ہے میں نے غلط غلط لوگوں کو بتایا. اب اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں توبہ کر لیا، اب اصلاح کریں. اصلاح کیا ہے؟ میں دوبارہ ویسی غلطیاں نہیں کروں گی. چلے بھائی، یہ 2 کام تو بندے کے اپنے لیول پہ ہے، کر لیتا ہے چھپ چھپا کے. تیسرا کام بڑا بھاری ہے بھائی، بہت ہی بھاری ہے. اب جائیں ہم لوگوں کے پاس اور آپ لوگوں کی بھی اصلاح کریں. دیکھو بھائی، پہلے میں نے تمہیں چیزیں بتائی تھی، یہ غلط تھا، یہ مت کرو، ایسا مت کرو. میں بھی اگلا بندہ تھپڑ ہی مار دے آپ کو، یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری ساری زندگی تم نے ویسٹ کر دی. ہاں، تم ہم کو غلط دین سکھاتے آ رہے تھے. سوچے کتنا مشکل کام ہے کہ آپ لوگوں میں جا کر یہ بات کا اعلان کریں کہ بھائی میں تمہیں جو دین سکھا چکی ہوں وہ غلط تھا، اب تمہیں یہ کتاب و سنت فالو کرنا ہے نا. تیسرا کام بڑا مشکل، لیکن کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ آپ نہیں آنا چاہتے نا اس لعنت میں، اس لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ انا التواب الرحیم، اور میں ہی تو توبہ قبول کرتا ہوں، رحم کرتا ہوں. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے. اللہ سے دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اس لعنت میں ہمیشہ وہ رہیں گے. اللہ اکبر. نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے
अजाब, और ना ही उनको कोई मोहलत दी जाएगी। तो करे क्या फिर? करना क्या है भाई? यही करना है कि जो बचना चाहता है इस लानत में, तो एक अल्लाह की तरफ आ जाए। और सुनो, तुम्हारा माबूद तो एक अकेला माबूद है, ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, के नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय उस रहमान और रहीम के। और शान क्या है उसकी? उसकी शान है कि बेशक उसने पैदा किया आसमान और जमीन को, और ये रात और दिन का आना जाना, और जो है वो फुल्की और कश्ती, वो जो चलती है समंदर में, बीमा अल्लाह तला बोलते हैं, वो वो जो वो नफा देती है लोगों को। और जो नाजिल किया अल्लाह ने आसमान से पानी, फिर इस पानी के जरिए मुर्दा जमीन को उसकी मौत के बाद अल्लाह ने क्या किया? उसको दोबारा जिंदा कर दिया। बस फीहा, और उसमें हर किस्म के जानदार को अल्लाह ताला ने जो है वो फैला कर रख दिया। और मुख्तलिफ तरीके से जो है हवाओं का आना जाना, बादलों पर काबू रखे हुए। कौन से? ये बादलों पर काबू आसमान और जमीन के। यकीनन इन तमाम चीजों में निशानियां हैं, लेकिन किसके लिए? अकल रखने वाले लोगों की। अल्लाह अकबर। आह, एक आयत में अल्लाह सुब्हान तआला ने सारी कुदरत के सैर करवा दी। अपने बच्चों को जब बाहर ले जाए ना, इन चीजों पर गौर फिक्र करवाए करें। नेचर में रहना सिखाए अपने बच्चों को। आज के बच्चे भी हमारे आर्टिफिशियल हो गए, पता है क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल चीजों में रहते हैं। फर्नीचर, चेयर, और वो टीवी, और जो इतने के घर में आर्टिफिशियल चीजें, तो बच्चे भी सारे आर्टिफिशियल हो गए। नहीं नहीं, आप चाहते हैं ना कि बच्चों के अंदर एक नेचर आए, उनका नेचर अच्छा हो, या फिर उनको अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, तो आप उनको नेचर में लेके जाएं, अल्लाह की पहचान करवाएं। देखिए, मेरे आपके बच्चे जीते जागते बच्चे हैं, कोई पुतले नहीं है ये। आप जैसे इनको ढालेंगे ढल जाएंगे। आप अगर अल्लाह का इंट्रो नहीं करवाएंगे कुरान के जरिए, तो हमारे आपके बच्चे साइंस के बच्चे बन जाएंगे। जी, वो साइंस को ही नाउज बिल्ला पूछने लगेंगे, नाउज बिल्ला साइंस को ही खुदा बना लेंगे। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जिनको अल्लाह की पहचान नहीं करवाई गई, और वो उस फील्ड से हैं, तो वो उसी के होकर रह जाते हैं। सोचिए, बहुत बड़ी ये तो बदबख्ती की निशानी है ना। सोचिए। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजों को अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो, ये क्यों अल्लाह ताला बता रहे हैं बताए? अल्लाह ताला ये मुझे आपको मैसेज दे रहे हैं, ये तमाम चीजें बंदे तेरे लिए मैंने बनाया है। सोचो। और आज क्या होता है पता है? कि अल्लाह सुब्हान ताला ने तमाम चीजें हमारे लिए बनाई है, आज इंसान इसी में खोकर रह जाता है। ऐसी है ना, इसी में खोकर रह जाता है। तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? कि तुम जो है इन तमाम चीजों से अल्लाह की मारिफत हासिल करो। और जो है इसको ये करें, म्यूट करें। हम्म? इन आयतों को पढ़ने के बाद यकीन करें कि कहीं पर भी लगता है कि अल्लाह की खलकत में किसी और की जो है मिलावट है या कोई शरीक है। जी नहीं, ये तमाम चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला इन तमाम चीजों से पाक है कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। बहुत ही खूबसूरत आयतें थी, ठीक है चले। अब वो क्यों अल्लाह ताला ने ये तमाम बातें बताई? वो इसलिए क्योंकि हम्म, देखिए, जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्रिएशन का जिक्र किया गया, तो अल्लाह के एक होने की कितनी बड़ी दलील है। देखिए, पहले अल्लाह ने कहा तुम्हारा रब एक अकेला वाहिद है, फिर अल्लाह ने सबूत भी दे दिए नीचे। लेकिन एक शिकवा है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। शिकवा क्या है? अगली आयत में हम देखते हैं। शिकवा ये है, आयत नंबर 165 में देखिए। इतनी कुदरत की निशानियां देखने के बावजूद भी लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वो अल्लाह के साथ दूसरों को बराबर ठहरा लेते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है, बराबर ठहरा लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा तो अल्लाह करते हैं, कोई और भी करता है, नाउज बिल्ला। ये कुछ लोगों का ईमान और सोच है। जैसे नाउज बिल्ला अल्लाह सुनता है, कोई और सुनता है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं, कोई और अता करता है। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान बोलते हुए कांपता नहीं है ऐसी बातें। अल्लाह कहते हैं मेरे बराबर वो ठहराते हैं। और चलो ठीक है, वो सब तो उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। सोचिए। हम्म? अब यहाँ पर देखें आप कि एक एक क्वेश्चन मेरे और आपके लिए कि कैसे मुझे पता चले, ठीक है, कैसे पता चले कि अल्लाह से मुझे मोहब्बत है या अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है? सोचिए। हम्म?
अल्लाह सुब्हाना ताला ने यही कहा है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ और तुम मेरे साथ शरीक ठहराते हो। तुम ये कहते हो कि कोई और कहता कर सकता है ये सब। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि आपकी वैल्यू अल्लाह के नजर में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके दिल में अल्लाह के लिए बहुत वैल्यू है, बहुत मोहब्बत है। भले हम दावा ही करें मुंह से, पर है, ठीक है। लेकिन मेरा नहीं पता ना अल्लाह की नजर में क्या है। लिखे इस आयत पर अपने लिए एक जुमला। आप अगर देखना चाहती हैं तो बस ये देख लें कि आप अपने आप को किस काम में मसरूफ रखती हैं। पूरा दिन आप किस काम में बिजी रहती हैं, सिर्फ दुनिया के काम में या उसके साथ दीन के काम में भी? कुछ हिस्सा आपका, आपका कोई वक्त अल्लाह के काम में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सारे सवालात अब हर कोई अपना चाहते थे, वो बाजू वाले को मत देखें आप, हाँ? अपने आप को देखें कि मेरा वक्त ज्यादातर किस कामों में लगता है। बस समझ जाए वही कदर है अल्लाह की नजर में, मेरी और आपकी, ठीक है। चले, अब उसके बाद जो है, हम्म, अब एक और चीज याद रखें कि अल्लाह से मुझे मोहब्बत है या नहीं, तो याद रखें मोहब्बत क्या कहते हैं, वो सबूत मांगती है ना। ये आप शायद बात समझ जाए, ओके। अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती, बहुत मोहब्बत करती, बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो कैसे मैं जांचूं? आपका बच्चा आपसे दावा कर रहा है, ओ मम्मी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, सुनता एक भी नहीं आपकी। आप बोलेंगे कैसी मोहब्बत है तेरी, तो सुनता नहीं है कुछ भी मेरी, है ना। क्योंकि याद रखिए जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जाहिरी बात यह है कि हम उसकी बात बहुत सुनते हैं। ऐसे है ना, जो बीवियां अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हैं या जो शौहर अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो सुनते हैं, वो सुनते हैं उनकी बातों को, उस पर अमल करते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर जो बच्चे दावा करते हैं मोहब्बत का, और एक गिलास आप पानी मांगे, वो पानी ना लाके दे, तो आप बोलोगे मेरा बच्चा मुझसे मोहब्बत करता है? अल्लाह सुबहान ताला को जबान ही नहीं, ओ अल्लाह आई लव यू सो मच, नहीं, अल्लाह ताला बोलते हैं, जबान ही नहीं चाहिए, ये बोल बच्चन नहीं चाहिए मुझे, अमल करके कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभी इंसान ना के फिर उसको अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह ने जो हलाल किया है उसी को मानेगा, जो हराम किया है उसको हराम मानेगा। लेकिन आज देखें आप कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अल्लाह की मोहब्बत को एक तरफ करके बच्चों की मोहब्बत में हलाल को हलाल नहीं समझते, हराम को हराम नहीं समझते। ऐसी मोहब्बत अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं जरा देखिए बड़ा जबरदस्त अभी मामला आने वाला है। जो लोग पीरी मुरीदी में पड़े रहते हैं ना, उनका क्या खुलासा अल्लाह ने किया। अल्लाह ताला कहते हैं और अगर, नहीं यहाँ लो, और वो लोग जो ईमान वाले हैं, यानी जो मुशरिक लोग हैं, वो अल्लाह से ज्यादा अपने जो है शुरका से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ईमान वाले वो ज्यादा होते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। और अगर वो सब देख लेंगे जिन्होंने जुल्म किया है, क्या देख लेंगे, वो अजाब जब देख लेंगे, ऑन दैट टाइम उनको सब रियलाइज हो जाएगी, तो हो जाएगा कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, ठीक। उस वक्त ये रियलाइज करके क्या फायदा, तमाम पावर, तमाम कुव्वत, ताकत सब अल्लाह की है। अरे ये तो दुनिया में जरूरत है आज, कि सारा का सारा पावर अल्लाह का है। आज लोग ये सोचते ना, नहीं कोई हमारा करनी है, कोई दाता है, कोई मुश्किल कुशा है, कोई हाजत रवा है, ये हमारा कुछ बना सकते हैं, ये कुछ बिगाड़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला बोलते हैं तुम अजाब देख लोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि अल्लाह शदीदुल अज़ाब, बेशक अल्लाह सख्त अजाब वाला है। अल्लाह हमें इससे बचा कर रखे। अब आई बात उन लोगों की जो अल्लाह की नाकदरी करते हैं, पीरों की वजह से, बुजुर्गों की वजह से, कुछ लोगों को कुछ समझते हैं कि इनको कुछ पावर है। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो इनकी कैफियत क्या होगी कयामत के दिन, कि जब क्या होगा, ये ला ताल्लुक हो जाएंगे वो लोग, कौन से लोग, जिनकी पैरवी की गई थी। आप इन शॉर्ट लिखो, ये पीर साहब है, ठीक है, ये पीर साहब, ओके, ठीक है, जिनकी पैरवी की गई थी। और किसके ताल्लुक खत्म हो जाएगा, किसके साथ, उन लोगों के साथ ताल्लुक खत्म हो जाएगा जो पैरवी कर रहे थे, ये हमारे मुरीद साहब, ठीक है, मुरीद भाई। हम्म? अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वराअवुल अज़ाबा, और वो सब खुद ही अजाब देख लेंगे, तो कट जाएंगे सारे उनके वसीले, सारे असबाब कट जाएंगे। अजाब देख के वहां सारी पूरी पीरी मुरीदी सब खत्म हो जाएगी, सब। अल्लाह ताला बोल रहे सारे इनके असबाब मैं काट दूंगा। सोचिए, हैरानी हुआ जब हमने इस आयत को फर्स्ट टाइम जो है इतना शऊर से समझा।
अल्लाह का शुक्र है, इस बला से तो अल्लाह ने बहुत पहले से बचपन से ही दूर रखा है, इस फितने से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बड़ी हैरानी हुई कि कितनी गैब की बात है, आप सोचे जरा। अल्लाह ताला बोले ये मामला होगा, कयामत के दिन मैं ऐसा करूंगा। सोचिए जरा। अल्लाह अकबर। जो ऐसा सोचते थे ना, ये हमारा कुछ कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, और जिंदगी सारी उनके पीछे ही लगा दी, अल्लाह ताला बोलते आओ वहां पे पता चलेगा। अब जरा अगली आयत है ना, जो बहुत शऊर के साथ सुनिएगा आप लोग। अल्लाह ताला कहते हैं, कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की, ये कौन है? ये मुरीद लोग। क्या कहेंगे? लव अन्ना लना। जरा ध्यान से सुनिए। काश के लिए हमारे लिए होता दुनिया में दोबारा लौटना, तो हम तुमसे ला ताल्लुक हो जाते, उसी तरह जैसे तुमने आज हमसे सब रिश्ते नाते खत्म कर दिए। अल्लाह अकबर। बात आ रही समझ में कुछ? मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को समझाने की, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाए। यानी वहां जब अजाब देख के कहेंगे, पीर साहब बोलेंगे नहीं नहीं मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, चलो चलो जाओ 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 जाओ, क्योंकि इनकी वजह से डबल अजाब मिल रहा है ना इनको। हाँ। और फिर अब मुरीद बेचारे परेशान, अब कहाँ जाए? दुनिया में तो इनके पीछे पीछे फिरते थे, इनकी खिदमतें करते थे, पैर दबाते थे, हाथ दबाते थे, इनके सर दबाते थे, इनके पीछे पीछे चलते थे। हाँ, सोचिए जरा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वहां पे बेचारे पीर लोग जो मुरीद क्या कहेंगे कि आज काश हमको दुनिया में अल्लाह भेज दे ना, फिर जाओ हम तुमसे ताल्लुक खत्म कर देंगे। अल्लाह ताला बोल रहे इसी तरह दिखा देगा अल्लाह उनको, उनके अमाल को हसरत बनाकर, और नहीं वो वहां से निकाले जाएंगे। कहाँ से? आग से। याद रखिए, अ, दुनिया का रास्ता, देर इज ए वन वे, नो यू रिटर्न, रिटर्न एंड नो यू टर्न, कुछ नहीं है। एक वाहिद स्ट्रेट एक सिंगल रास्ता है, जो बिल्कुल इसको सीधा 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 चलता रहा अल्लाह के हुक्म पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, एंड में जाकर वो वाकई जन्नत तक पहुंचेगा। कुरान एक मैप है मेरे और आपके लिए जन्नत तक पहुंचने के लिए। मुझे हैरानी होती है कि ऐसी आयतें लोग जो है वो जब मजलिसों में बैठते तो इसको हाईलाइट करिए ना भाई, किस धोखे में फंसे जा रहे हो, कौन से धोखे में पड़े हो। अल्लाह ताला तो इतनी गैब की बातें, देखिए बड़ी गैब की बातें, आप किसी से शेयर करोगे ना, हाँ तुझे बड़ा गैब पता चल गया, बोले हाँ अल्लाह ने मुझे किताब में बताया है, एकदम बहुत कॉन्फिडेंटली कहे, आयत नंबर लिख लें कहीं पर भी, ताकि आपको दलील देने के लिए काम आए। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उमिरमान टाइम हुआ बेटा? जी आपका 24 हो रहा है, और 5-10 मिनट ले लो। ओके ठीक ठीक। हम्म। अब चलिए, अब उसके बाद अगली जो आयतें हैं वो कुछ अहकामात की बातें हैं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या क्या हुक्म हमें दे रहे हैं। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए इंसानों, कॉमन यूनिवर्सल आयत है बिल्कुल, खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल और तैयब दिया है, और नहीं तुम शैतान के कदमों की पैरवी करो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। दर हकीकत वो तुम्हें हुक्म देता है बुराई का और बेहयाई का, और इस बात का कि तुम अल्लाह पे झूठ कहो, ऐसी बातें कहो जो तुम नहीं जानते हो। और जब जब उनसे कहा जाता है कि इत्तिबा करो जो नाजिल किया अल्लाह ने, उसको मतलब फॉलो करो, तो वो सब कहते हैं बल्कि हम तो इत्तिबा करेंगे उसी की जिस पर हमने पाया हमारे बाप दादा को। अल्लाह ताला बोलते हैं अच्छा, वह अवलों का ला, इस सूरत में भी बाप दादा को ही तुम फॉलो करोगे कि तुम्हारे बाप दादा को कुछ भी अकल नहीं थी, और उनको वो हिदायत पर भी नहीं थे। और मिसाल उन लोगों की जो कुफ्र करते हैं, जैसे मिसाल वो जो, यानी एक इंसान, यानी जो शिर्क करता है, जो कुफ्र करता है, उसकी मिसाल ऐसे है कि जो चलाता है जानवरों को, वो जानवर नहीं सुनते हैं उसकी आवाज को, हाँ मगर बुलाने और चीख पुकार को ही वो सुनते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ने मिसाल दी है कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फिर वो अकल नहीं रखते हैं। जी, यहाँ तक आइए, यहाँ तक जरा देखते हैं। अब बात आई खाने पीने की अहकाम। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया जमीन में सब खाओ पियो। देखिए जो लोग ऐसा कहते हैं हाय है दिन पर आएंगे तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा, मतलब कहीं पर भी आपको एक आयत ऐसी नहीं मिलेगी कि अल्लाह ने कहा कि मत खाओ। अल्लाह ताला बोलते खूब खाओ। कुछ लोग बड़े गिल्ट में आ जाते हैं, हाय है मैं कुरान समझ गई, अब तो मुझे जो है वो बहुत सारी चीजों से परहेज करना पड़ेगा। जी हाँ करना पड़ेगा ना, हराम चीजों से करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखें, मैं कहती हूँ खूब खाइए,
खूब पिए, खूब मजे करें, लेकिन अच्छे अच्छे काम करें, नेक अमल करें। अल्लाह खाने पीने को मना नहीं करता है। खाने पीने के बाद जो एनर्जी मेरे आपकी बॉडी में आती है ना, उसके गलत इस्तेमाल को अल्लाह मना करता है। खूब खाएं, खूब पिए और अच्छे अच्छे काम करें, तब जाके वो मेरा आपका खाना पीना कुछ काम आ सकता है। उसके बाद याद रखें कि खाने पीने को जमीन में से हलाल और तैयब कहा गया है। इसकी बहुत बहुत ज्यादा डिटेल है। यकीन करें कि मैं तो सबको रिकमेंड करूंगी कि इस आयत को जरूर आप तफसीर सुनिए। क्यों? क्योंकि इससे मेरे और आपके नेकी का, अमाल का बहुत बड़ा ताल्लुक है। जब इंसान के पेट में हराम जाता है तो नेकियों की तौफीक छिन जाती है, उसको नेक अमल की तौफीक नहीं मिलती है। हम्म? और यहाँ पे बात आई है हलाल और तैयब की। एक इन शॉर्ट सिर्फ मैं आपको बता दूं, हलाल आप कह सकते हो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम इसमें देखा जाएगा। और तैयब में लिस्ट तो नहीं बताऊंगी आपको, सिर्फ एक जुमला कह देती हूँ कि हर वो चीज जो आपके बॉडी में जाकर आपको साइड इफेक्ट करे, आपकी सेहत खराब करे, वो तैयब नहीं हो सकती है। अब आप खुद ही लिस्ट बना लें, ठीक है? वो तैयब नहीं हो सकती है। हलाल फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जरूरी नहीं है कि आप हलाल कमाई से जो चीज लाए, कमाई से आपने चीज लाए वो हलाल भी हो। होता है ऐसा? आपकी कमाई हलाल है लेकिन आप खाने की चीज हलाल नहीं ला रहे, होता है ऐसा? ठीक है, इसलिए आप अपनी कमाई हलाल है लेकिन चीज तो ये अब नहीं है। एग्जाम्पल मैं अक्सर जो स्टूडेंट्स को देती हूँ, कोई फ्रूट्स आप लेकर आए, बड़े आपकी कमाई हलाल है, आप कोई फ्रूट्स लेकर आए हो ना, वो कमाई भी आपकी हलाल है, वो खाना वो फ्रूट्स भी आपके हलाल हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम समझिए कि वो सड़ गया है, गल गया है। अब वो चीज हलाल तो है लेकिन आपके लिए तैयब नहीं है। क्यों? क्योंकि सड़ा गला आप कुछ भी फ्रूट खाते हो तो आपकी बॉडी में जाके वो आपकी हेल्थ खराब करेगा, मे भी आपकी तबीयत खराब हो सकती, तो ना, वो अब आपके लिए तैयब नहीं रह गई है। तो ये तो बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, लेकिन मेरा तो दिल ही नहीं करता इस तरीके से गुजर जाने का, लेकिन हम तो सिर्फ यूं ही बस समरी कर रहे हैं, तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन जहाँ अमल की बातें होती है तो मुझे ऐसा लगता नहीं मैं खुलासा कर दूं, लेकिन आप कोशिश करें इन आयतों की तफसीर जरूर सुन। आपको बहुत कुछ अल्लाह के हुक्म से सीखने को मिलेगा, ठीक है? क्या होता है कि अल्लाह ताला जो लोग फिर नहीं अमल करते ना, तो दरअसल वो शैतान के कदमों की पैरवी कर रहे हैं। देखो कोई, अब आप बोलोगे बूटी स्टेप को कौन फॉलो करता है भाई? शैतान की। अल्लाह ताला बोल रहे हैं अगर आपने अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो दैट मीन्स आप शैतान के कहने से चल रहे हो। और शैतान, अल्लाह ताला बोल रहे हैं, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बस बोलने से काम चल जाएगा? जी नहीं, लिखे इस आयत पर, जब आप उसको दुश्मन समझोगे तब आप उससे बचोगे। जी हाँ। और अल्लाह बोल रहा है खुला दुश्मन, वो तुम्हारा नुकसान चाहता है। और उसका हाल क्या है कि क्या करता है पता है? कि जब वो इंसानों को हराम में डाल देता है, बहुत हराम की कमाई और ये सब सब, अब क्या करेगा आदमी? अरे भाई मेरे पास तो इतने सारे अब माल है, क्या करूं? तो वो क्या करता है? बुराई का हुक्म देता है, बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है। कोई बात नहीं, अब इतने पैसे हैं तो दिखाओ ना, इतना हुस्न है तुम्हारे अंदर तो शो ऑफ करो ना, क्या जरूरत है अपने आप को इतना ढाकने की? फिर वो बेहयाई की तरफ ले जाता है। याद रखें, जितनी ज्यादा आपकी कमाई हराम होगी ना, उतने ही आपके बदन से कपड़े कम होते जाएंगे। और ये बहुत बड़ी हकीकत मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक बच्ची को देखा था, इतने शॉर्ट कपड़ों में वो चल रही थी सड़क पर, उसकी मम्मी पूरे हिजाब में। मैंने पकड़ा उसको, मैंने कहा आपकी बच्ची है? बोले हाँ हाँ मेरी बच्ची है। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। और ये क्या आपने फितना कर रखा है? पहले अच्छे से उसको, मैंने आप पूरे हिजाब में चल रही हैं, इस बच्ची को कोई भी देखेगा उसकी नजरें फिरेंगी, वो गलत इंटेंशन से इसको देखेगा, उसका माइंड अगर डाइवर्ट हुआ तो उसका वबाल इस बच्ची पे नहीं आप पे आने वाला है। तो मतलब पैसे हैं तो तुम बच्चियों को इस तरीके से मतलब पूरे कपड़े पहनाने में क्या हर्ज है? मुझे तो ये लॉजिक ही नहीं समझ आता है लोगों का। मतलब तुम नंगे बच्चों को बाहर ले जाओगे जब भी समझ आएगा कि तुम मालदार हो, तुम पैसे वाले हो। अरे तुम इज्जतदार घराने की बच्चियां हो, लड़कियां हो, कम से कम ये भी तो जाहिर करो सामने वाले को। ठीक है? तो ये शैतान के हथकंडे हैं। और फिर उसके बाद ऐसी ऐसी बातें, अल्लाह का नाम ले लेके तुमसे झूठ बुलवाएगा। अरे कुछ नहीं होता है, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर देगा, अब इतने पैसे अल्लाह ने दिए तो क्या करें, ये करें वो करें, कुछ नहीं, अल्लाह ने ही कहा है ऐसा करो वैसा करो। ऐसे ऐसी झूठी बातें आपके मुंह से निकलवाता है वो। अल्लाह अकबर। चले आप लोग आ जाए सेम लिंक पर।
अगली आयत पर हम चलते हैं। और यहाँ पर आप देखिए आयत नंबर 170। और अब तक याद रखिए कि शैतान कभी भी अपना बन के आता है और आपको इस तरीके से धोखे की बातें जो है वो बताता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब भी शैतान का नाम आता है तो शैतान क्या बहुत खतरनाक है? जैसे कि यूजुअली हमें मीडिया में दिखाया जाता है, दो सींग, बड़े बड़े दांत, काला काला सौ, बड़े बड़े नाखून। जी नहीं, ये शैतान की शक्ल नहीं। शैतान बहुत खूबसूरत है। नहीं तो आप सोचिए ना, अगर वो इतना बदसूरत होता तो क्या लोग उसका कहना मानते? कोई भी उसका कहना नहीं मानता। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत तरीके से इंसानों के पास आता है और अपनी बात मनवाता है वो। तो जब भी ऐसा कभी आपको कि लगे कि मैं अल्लाह से दूर हो रही हूँ या अल्लाह के किसी हुक्म पर अमल करने के लिए मुझे मुश्किल लग रहा है या कुछ, तो फौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं, लेकिन ये बहुत इजी है, इजीली सबको याद रह जाएगी। चले आगे। अब यहाँ पर देखें कि कुछ लोग जो है, जब उनसे कहा जाता है कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, या फिर सही दीन ये है, कुरान को फॉलो करो, सुन्नत को फॉलो करो, तो एक कॉमन जो बात सुनने को मिलती है कि नहीं भाई, हमारे बाप दादा जो करते थे हम उसी पर चलेंगे। देखिए, हर सवाल का जवाब आपको कुरान में मिल जाएगा। जो लोग पहली दफा कुरान को सुन रहे हैं ना, उन्हें बड़ा अजीब लगता है। अच्छा, तो हमने तो सोचा था कि कुरान में सारे तस्बीहात की बातें हैं, वजीफे की बातें हैं। एक दफा जैसे कि मुझे किसी ने एक आयत भेजी, पता नहीं उस टाइम में क्या मामला चल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि इसको फॉरवर्ड करें, इसको शेयर करें और ये वजीफा करें, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। और वो आयत जब मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी समझ तो दी। तर्जुमा पढ़ने के बाद उस मसले पर वो आयत कहीं से भी कुछ भी फिट नहीं बैठ रही थी। अगली बंदी को मैंने कहा कि देखो भाई, आप जिस मसले के लिए ये भेजी है, पहली बात तो ये उसके ऊपर कहीं कहीं सूट ही नहीं करता है। हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, कुरान की हर आयत, कोई भी आयत का वजीफा कर सकते हैं। अरे ये क्या बात हो गई भाई, कि मतलब कोई भी आयत उठा के तुम वजीफा करने लगोगे? देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान को वजीफे के लिए नहीं उतारा है। बड़ी हैरानी होगी आपको जब आप कुरान पूरा समझ जाओगे। बहुत सारी ऐसी बातें जो वाकई हम अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, एक बात भी आपको कुरान में नहीं मिलेगी। उसमें से एक चीज यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो नाजिल किया भाई उसको फॉलो करो, नहीं नहीं, हम तो हमारे बाप दादा के दीन पर चलेंगे। याद रखें कि बगैर सोचे समझे इंसान बाप दादा को फॉलो करता है इस तरीके से, ठीक है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे बाप दादा ठीक है, उनको अकल नहीं थी और वो हिदायत पर नहीं थे, बेचारे उन तक ये कुरान नहीं पहुंचा था, इस तरीके से वो कुरान को नहीं समझे थे, तो जो उनको समझ आता था कर देते, ठीक है चलो, उनका मामला अल्लाह के साथ है। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह भी यही फरमा रहे हैं कि उनसे आप ये सब कहोगे, अल्लाह को पता है उनका क्या हाल है, लेकिन मुझे और आपको जब ये बातें समझ आ रही है, फिर बाप दादा के दीन को फॉलो करना तो बेवकूफी हुई ना। फिर उसी के साथ साथ देखिए कि यहाँ पर जो है वो यानी कि वही एक ऐसे जो लोग आपसे कहे ना कि हमारे बाप दादा ये करते थे इसलिए हम कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ दीन के मामले में बाप दादा को फॉलो करने का? वो एक जुमला अक्सर हमारी क्लास की एक आंटी कहती हैं कि बचपन के कपड़े बचपन में पहनते क्या तुम? ये जुमला उनका याद आता है मुझे अक्सर, ऐसा कि बाप दादा के बाकी चीजें भी फॉलो करो ना। वो बेड पे नहीं सोते थे, चरपाई पे सोते थे, या वो जमीन में सोते थे, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करते थे, ऑन दैट टाइम अवेलेबल नहीं था, सेल फोन यूज नहीं करते थे, वो इतने ऐशो आराम की जिंदगी में नहीं रहते, तो अरे भाई तो कम्प्लीटली फॉलो करो ना। क्या मतलब दीन में तुम्हें जो मनमानी करनी है उसमें बाप दादा का नाम करना अपनी मनमानी है, लगा रहे नाम बाप दादा का। अब कोई कब्र में जाके पूछने वाला तो है नहीं भाई कि तुम ये क्या दीन सिखा कर गए। ठीक है, वो जो कर गए वो अपने हिस्से का कर गए, लेकिन मुझे और आपको अल्लाह ताला बोले अकल का इस्तेमाल करो। वो हिदायत पर नहीं थे, उन्हें अकल नहीं थी, तो तुम उनको ऐसे फॉलो करोगे? तो इस बात से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, ठीक है। चले ठीक है। अब उसके बाद जो है काफिरों की कुछ यहाँ पर जो है वो बात की गई है। कौन से काफिर है? जो किताब और सुन्नत को छोड़कर बाप दादा के दीन को फॉलो करते हैं, ये उन काफिरों की बात चल रही है, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग जो अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं दूसरों को, तो उनकी मिसाल तो अल्लाह ताला ऐसा बोल रहे, बहरे हैं, गूंगे, अंध हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। अब वो याद रखिए, बात शुरू हुई थी हमारे हलाल और तैयब से। जो इंसान इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है ना, तो कहीं ना कहीं ये कुफ्र में आ जाता है वो। जी,
अल्लाह का नहीं सुनेगा तो कुफ्र में ही आ जाएगा। ठीक है चले, अब अल्लाह ने कहा कि छोड़ो, तमाम इंसानों से मैंने कह दिया था, नहीं सुने ना, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों से मुखातिब है। याद रखे, जहां पर भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार पड़ेगी ना, कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। अल्लाह ताला बोल रहे, ए मुसलमानों, खाओ पाक चीजों में से जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है, और शुक्र करो अल्लाह का अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात है। अब यहाँ पर एक चीज देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या था, हलाल और तैयब, और यहाँ पर क्या है, ओनली तैयब। क्यों, ये क्या बात हो गई जी? एक ईमान वाला बंदा हराम कमाई की सोच भी नहीं सकता है, वो कभी हराम कमाई लेता ही नहीं है। उसको पता है मेरा रब नाराज हो जाएगा, मैं हराम चीजें कमा नहीं सकता हूँ, मैं हराम चीजें अपने बच्चों को खिला नहीं सकता हूँ, मैं खुद भी नहीं खा सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने सीधा तैयब की बात की है। ठीक है, तुम हलाल कमाओ लेकिन चीजें ऐसी खाओ कि जिससे तुम्हारे बदन में पॉजिटिव इफेक्ट हो, अल्लाह का शुक्र निकले। अल्लाह अकबर, ऐसे खाने मत खाओ कि ओहो बड़े मजेदार खाने खा लिए, अब क्या करें, अब तो बहुत नींद आ रही है, ईशा भी गायब कर दो, है ना, ऐसे ही ना। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नहीं, तुम खाओ पियो खूब मजे करो, लेकिन शुक्र सिर्फ अल्लाह का करो। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते हैं अल्लाह का, बजाते किसी और का। एक जुमला कहा जाता है ना, गुण किसी और के ही गाएंगे, उनके करम से मिला, उनके फजल से मिला, हाँ इनका रहम हो गया, उनका रहम हो गया। अल्लाह अकबर, रब के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो मुझे और आपको खिलाता पिलाता है। और अल्लाह ने देखिए म्यार क्या रखा, शुक्र किस बंदे से निकलेगा, जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, वही उसी के दिल से, उसी की जबान से अल्लाह के लिए शुक्र निकलता है। खुद को रख के यहाँ पर जांचे टटोले, मैं कैसी हूँ, मैं क्या करती हूँ। ठीक है, हर आयत पर खुद को रख के सोचे, किसी और को ना रखे किसी आयत पे। ठीक है, चले, अब उसके बाद याद रखिए कि एक सवाल उठता है कि भाई क्या हराम है क्या हलाल है। तो एक खुशखबरी है आपके लिए, हमारे दस्तरखान पर सिर्फ चार चीजें अल्लाह सुब्हान तआला ने हराम की हैं, बाकी दुनिया की हर चीज हलाल है। आप शौक से खाएं, लेकिन तैयब के साथ खाएं। चार चीजों से रुक जाए आप बस। जानना चाहते हैं आपकी क्या है चार चीजें जिससे आपको रुकना है? हराम का मतलब है आपको रुक जाना है। अल्लाह ने कहा है रुक जाओ, तो मुझे और आपको रुक जाना है। ठीक है, वो चार चीजें, नंबर वन, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। हराम कर दिया गया तुम पर, किस पर? ईमान वालों पर, मुसलमानों पर, मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त। चलो भाई, आप बोलोगे अल्लाह का शुक्र है मैं तो ये सब नहीं खाती, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं खाते क्योंकि ईमान हमारे अंदर है। अच्छा, मुर्दार में फिर क्या क्या चीजें आएंगी इंशाल्लाह सूरह मायदा में जाकर इन डिटेल हम पढ़ने वाले वहां पर, तो थोड़ा सब्र रखिए, पहले से सारी चीजें पता चल जाएगी तो आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बहता हुआ खून, जैसे कि हम जबीहा जिबाह करते हैं जानवर वगैरह को, तो खून जो उसका बहता है, कुछ लोग उसको जमा कर मतलब वो जम जाता है फौरन ही ना, जम जाता है और उसको खाते हैं बोटियों की तरह। अल्लाह अकबर, सुअर का गोश्त, लोग बोलेंगे नहीं भाई मैं तो वैसे भी नहीं खाती सुअर का गोश्त। ठीक है, ये चीजें हराम है। ये तीन चीजों में तो कोई झंझट ही नहीं है, हर कोई एग्री कर लेता है। लफड़ा होता है ना तो इधर आके होता है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ये तीन चीजें ही नहीं बल्कि ये भी हराम है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो, किसी और के नाम का आप खा रहे हो। ठीक है, वो भी हराम है। फिर चाहे वो नजर नियाज हो, चाहे वो कुर्बानी का गोश्त हो, या फिर आप दूसरी कुछ तबर्रुकात ले लें या लंगर ले लें, कुछ भी रख लें आप यहाँ पर, इस पर बड़ा इख्तिलाफ होता है लोगों को। नहीं नहीं, ये थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है, हम तो अल्लाह के ही नाम का खाते हैं। याद रखिए, फिर आपके सारे सवालात का जवाब इसके अंदर आ जाना चाहिए कि हर वो चीज अल्लाह ने हराम की है, मना की है खाने को, जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, हम इनके नाम का कर रहे हैं, इनके नाम का खा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, सब बातों आप खुद गौर व फिक्र करें इन बातों पर। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि
پھر اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو بھی انسان انتہائی مجبور ہو جائے تو ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشن کیس ہے، یہ بہت مجبور ہو گیا، اتنا مجبور کہ اگر وہ مردار بھی کھائے گا نہیں تو جان سے جائے گا، تو اللہ نے کہا اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری کنڈیشن، بولتے نا گن پوائنٹ پہ رکھ کے کوئی آپ کو حرام کھلا ہے تو اٹس اوکے، آپ جان سے جانے کے بجائے یہ ہے کہ آپ کھائیں، لیکن دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک تو بغاوت کرنے والا نہ ہو، باغی نہ ہو، ہاں کیا ہوا اللہ نے منع کیا تو میں کھا کے دکھاؤں گا، دکھاتا ہوں نا کھا کے حرام، دیکھو ابھی کھا کے دکھاتا ہوں، ایسا بغاوت کرنے والا نہ ہو، اللہ کے سامنے اس طریقے سے بغاوت میں کھڑا ہونے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، اور نہ ہی وہ عادتن کھاتا ہو، ارے میں نے ایک دفعہ حرام کھا لیا تھا، کیا ٹیسٹی تھا، بہت اچھا تھا، اب میں تو اس کو بار بار کھاؤں گا، ایسا عادت کرنے والا نہ ہو، تو اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بہت مجبوری کے تحت، اور یاد رکھیں کہ یہ جو نا اضطروا، یہ اتنی بھوک کی بے بسی ہوتی ہے کہ آپ کے اتڑیاں پیٹ میں چھپک گئی ہیں، اتنی بھوک کا عالم، اتنا بے بسی کا عالم، آتا بولتے فلا اسم علیہ، اٹس اوکے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں لیکن پھر بھی ان اللہ غفور الرحیم، یہ کیا بات ہو گئی بھائی، یعنی توبہ تو پھر بھی اس کو کرنی پڑے گی، اللہ سے پھر بھی اکھا لیا ہے مجبوری میں، لیکن پھر بھی اس کو معافی مانگنا پڑے گا۔ چلے اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ وہ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں، اور وہ سودا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا تھوڑی سی قیمت میں، اللہ تعالیٰ بول رہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، محسوس کیا کرے ایک ایک آیتوں کو ایسے، سوچے کچھ لوگ کتاب کی سچی باتیں چھپا کر من گھڑت باتیں سامنے رکھتے ہیں، لوگوں کی مجاز کے حساب سے بات کرتے ہیں، چونکہ یہ سامنے آنا بندہ اس مجاز کا، چل بھائی میں اس سے اسی مجاز میں بات کروں، اب مجھے حرام کی چیزیں پتہ چل گئی، میں آپ لوگوں سے چھپا لوں، کیوں؟ اچھا 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 تم کو نہیں جمتا، ٹھیک ہے چلو، اور آپ سے کچھ پیسے لے لوں، اور آپ کو ناؤز باللہ اس چیز کو حلال قرار دے دوں، کیوں؟ کیونکہ یہ رویہ یہ جو یہ اہل کتاب یہودی نصارہ کے جو علماء تھے یہ کرتے تھے، پیسے لے کر حرام چیزوں کو، ہاں ٹھیک ہے جاؤ اٹس اوکے حلال ہے تمہارے پر کھا لو، ایسے کرتے تھے۔ اللہ، آج بھی کچھ لوگ یاد رکھے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، کیسے؟ جیسے کچھ لوگ میں بڑے کا گوشت نہیں کھاتی، میں بیف نہیں کھاتی، میں چکن نہیں کھاتی، یہ نہیں کھاتی، دیکھیے ایک الگ چیز ہے کہ وہ آپ کی طبیعت کو سوٹ نہیں کرتا ہے، وہ آپ کی باڈی کو سوٹ نہیں کرتا ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ ہمارے پیر صاحب نے منع کرے اس لیے ہم نہیں کھاتے، سوچیے وہ ہمارے بزرگ صاحب نے منع کرے اس لیے ہم نہیں کھاتے، تو بھائی وہ کیا خدا ہے؟ تو یہودی علماء بھی ایسے کیا کرتے تھے، لوگوں کو اس طریقے کے فتوے دے کے پیسے لے کے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو پیسے لے رہے ہیں نا غلط غلط بات بتا کے، یہ تم پیسے نا یہ آگے کے سوا کچھ نہیں کھا رہے ہو، حال کیا ہوگا؟ یہ تو دنیا کی بات ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلم اللہ یوم القیامہ، سوچے نہیں بات کرے گا، کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ اکبر، بہت سخت بات ہے، کیوں بات نہیں کرے گا اللہ؟ بھائی تم نے ناراض کرنے والے کام کرے، شاید یہ آپ پہ اتنا افیکٹ نہ کرا ہو، لیکن ایک ایگزامپل جو تو بات شاید سمجھ آ جائے، دیکھیے اللہ کے لیے تو کوئی ایگزامپل نہیں، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے، آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی اور آپ کے شوہر آپ سے کہیں آج کے بعد مجھ سے بات نہیں کرنا، کیا گزرتی اس بیوی پہ؟ سوچئے غلطی کری ہے لیکن پھر بھی یہ جملہ کتنا سخت گزرتا ہے ایک فرما بردار محبتی عورت پر، اپنے شوہر کا یہ جملہ بہت گرا گزرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، تو سوچئے یہاں تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ کہتا ہے میں دیکھوں گا بھی نہیں، اور کام پر آئے گا، میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، ان سے بات نہیں کروں گا، انہیں پاک نہیں کروں گا، کس چیز سے پاک نہیں کروں گا؟ جو یہ گناہوں کا اپنے اوپر پوٹلا لاد کے لائے ہیں، اس چیز سے انہیں پاک نہیں کروں گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سودا کر لیا گمراہی کا ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کا سودا کیا مغفرت کے بدلے میں، برے فما صبرهم علی النار، تو بتاؤ بھائی
کیسے صبر ہوگا ان کو جہنم کی آگ پر. سوچیے، مطلب دنیا میں تم ذرا سا حرام حلال پر صبر نہیں کر پائے. صبر مینس روک نہیں پائے خود کو. آگ پہ کیسے روکو گے تم؟ ضرورت ہے آج انسان سدھر جائے، آج اس کو چیزیں سمجھ آ جائے، تاکہ اب اللہ نہ کرے کہ یہ معاملہ کسی کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ذالک بأن، اچھا کیوں اللہ کو اتنا غصہ ہے ان کے اوپر؟ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی کتاب حق سے بھرپور، یعنی یہ کتاب، یہ حق آ گیا تمہارے پاس، اس کے بعد بھی بدماشیاں دکھاتے رہتے ہو. اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پتہ ہے کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ یعنی اب حرام حلال کی آیتیں آ گئی ہیں، پھر بھی کچھ مسلمان نہیں نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے. اللہ تعالیٰ بولے پتہ ہے تمہیں کیوں نہیں مان رہے یہ بات اور کیوں اختلاف کرے؟ لفی شقاق بعید، بھائی یہ تو ضد میں پڑے ہوئے ہیں. بس ایک ضد ہے ان کی، نہیں ماننا تو نہیں ماننا. بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو، پتہ ہے آیتیں سمجھنے کے بعد بھی اس پر عمل کرنا. اللہ اکبر، بڑا گرا گزرتا. لیکن یاد رکھے کہ آیتوں کو سنتے سنتے آپ نے اگر کمٹمنٹ کر لیا، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں آپ نے ایک وعدہ لے لیا، یقین کریں بہت آسانی ہو جاتی ہے. انسان عمل کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز آسان کر دیتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 167 آیت ہماری 176 ہو گئی ہے الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو.